Hello student, in this video lecture we are starting a very important topic that is chemiosmotic hypothesis. बहुत सारे स्टूडेंट chemiosmotic hypothesis में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में सिंपलेस्ट वे से हम स्टडी करेंगे और हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप बोर्ड की तरफ देखें। So we are starting with chemiosmotic hypothesis. This chemiosmotic hypothesis or chemiosmosis is taking place in both energetic organelle, that is chloroplast as well as mitochondria. So chemiosmosis occur in chloroplast and it is also occur in the mitochondria, which is also called as powerhouse of the cell. But as we are dealing with photosynthesis, we must have to study the chemiosmosis in chloroplast. Chemiosmosis or chemiosmotic hypothesis was proposed by Peter Mitchell in 1961, and he also get awarded Nobel Prize in Chemistry in 1978. तो आपको ये याद रखना है कि chemiosmosis proposed by Peter Mitchell. Now this theory explain the formation of ATP molecule and formation of NADPH2 molecule. So this theory explain how ATP is formed, that is formation of ATP, and specifically in chloroplast it also explain the formation of NADPH2. फोटोसिंथेसिस चैप्टर में कई मर्तबा आप NADPH2 को NADPH प्लस H प्लस मीन्स प्रोटॉन ऐसा लिखा हुआ देखते हैं। तो मैं आपको इसका भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये NADPH प्लस H प्लस क्यों लिखा जाता है। सो लेट अस कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. You know that each chloroplast is bounded by two membranes, outer membrane and inner membrane. Both membranes are separated by this narrow space. Outer और inner membrane के दरमियान जो space होता है उस narrow space को periplastidal space कहते हैं. Inner membrane encloses the ground fluid which is called as stroma, and you know that stroma is the site of dark reaction because in the stroma many enzymes are present which conduct or which catalyze the reactions of the C3 and C4 pathway. Apart from this stroma, many thylakoid membrane form the grana. So let us consider these are the thylakoid membranes. These thylakoid membrane are fused to form bracket-like structure. These bracket-like structure are the margin. So this one building is known as one granum. Many granums are present in each chloroplast, and all the granum are collectively known as grana. So grana is a plural term and granum is a singular term. These granum are connected by a common bridge or common membrane. This membrane is called as intergrana membrane or fret membrane or stroma lamellae. Complete structure of chloroplast मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप उस लेक्चर में देख करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कहां पे प्रेजेंट है। इस केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में स्टूडेंट हम स्टडी करने वाले हैं कि एटीपी किस तरह से फॉर्म होता है।
उसके लिए हम लोगों को, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि हम लोगों को एक थाइलैक्वाइड मेम्ब्रेन को रीड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हम ये देख सके कि स्ट्रोमा से लूमेन में प्रोटॉन किस तरह से आते हैं और स्ट्रोमा से और ल्यूमेन से जब प्रोटॉन बाहर निकलते हैं तो NADPH2 का फॉर्मेशन किस तरह से होता है और ATP का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो ATP and NADPH2 are always formed in the stroma site because they are required in the dark reaction. ATP NADPH2 की जरूरत कौन सी रिएक्शन में होती है? डार्क रिएक्शन, and dark reaction occur in the stroma. Therefore, ATP and NADPH2 are formed in the stroma. They are also called as assimilatory powers. इसके लिए आपको एक मर्तबा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को भी रिवाइज कर लेना पड़ेगा. So let us study about that thylakoid membrane. This is suppose thylakoid membrane. This is bracket like structure which is called as margin. Okay, like this. It is a complete structure. Okay, so this is only one sac. The internal structure is called as what? It is lumen, and this lumen is completely empty from the inside. थाइलैकोइड मेम्ब्रेन पर तीन कॉम्प्लेक्सेस आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज PS2 is located over here. This is suppose photosystem second. Photosystem second is responsible for splitting of water. Splitting of water is taking place at the lumen site. So this site is called as water splitting complex. Water splitting complex. यानी ये कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल है वाटर का फोटोलाइसिस करने के लिए. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ऑलवेज टेक्स प्लेस इनसाइड द लूमेन. ये पॉइंट आपको याद रखना है. फोटोसिस्टम सेकंड का मेन कंपोनेंट होता है बच्चों जिसका नाम है फियोफाइटिन. Phyophytin is a main and important component of the photosystem second. Photosystem second is also called as oxidase complex because it split the water, it breaks the water, means it oxidize the water. Photosynthesis का जो इक्वेशन है हम लोगों ने उस इक्वेशन के समय स्टडी किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू फॉर्म द ग्लूकोज, वाटर स्प्लिट और ऑक्सीडाइज टू फॉर्म द ऑक्सीजन. तो वाटर का क्या होता है? ऑक्सीडेशन. एंड ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. दिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ the complex which is located at the inner side of the thylakoid membrane. Inner side of the thylakoid membrane means in the lumen region. Second thing, here another complex is present which is cytochrome B6F complex. Cytochrome B6F is the component of electron transport system or electron transport chain. After cytochrome B6, the third component in this thylakoid membrane is photosystem 1. Okay, and the primary electron carrier from the photosystem 1 is called as ferredoxin. Ferredoxin is located here, means at the outer side of the thylakoid membrane. FD stands for ferredoxin. You know that ferredoxin is iron containing red protein
okay, and main component of PS2 is pheophytin. Now what will happen here? Splitting of water occur, so that water molecule get splitted into protons, pair of proton, pair of electron, and half O2. This half O2 is evolved in the atmosphere in the form of gas. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपने स्टडी किया था कि वाटर का फोटोलाइसिस होता है और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। प्लांट ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व करते हैं, सो दैट ऑक्सीजन गैस कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, दैट ऑक्सीजन रिलीजेस आउट फ्रॉम द लूमेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह से ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली इवेपोरेट हो जाएगी। अब आपके पास यहां बचा क्या है? पेयर ऑफ प्रोटॉन एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों, पेयर ऑफ प्रोटॉन अकुमुलेट हो जाएगा लूमेन में, यानी लूमेन में जमा हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोस टू द photosystem second, so that photosystem second get excited. Point number 1. Point number 2, photosystem second also undergo excitation when the photons are incident on it, and you know that photosystem second receive the photon of wavelength 680 nanometer. So now let us consider the photons of 680 nanometer are fall down on the photosystem second. तो फोटोन मतलब लाइट एनर्जी की वजह से और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों को रिसीव करने के बाद फोटोसिस्टम सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एंड आफ्टर एक्साइटेड स्टेट photosystem second eject the energy rich electrons. These electrons are captured by plastoquinone PQ, and always know that you आपको हमेशा ये याद रखना है कि प्लास्टोक्यूनॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यानी प्लास्टोक्यूनॉन PS2 से इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद ले जाकर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को डोनेट करेगा, तो इसे कहा जाएगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। अभी प्लास्टोक्यूनॉन की एक स्पेशलिटी यहां पे ध्यान से सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि हाउ प्रोटॉन्स आर मूविंग फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू द लूमेन। स्ट्रोमा रीजन में ऑलरेडी प्रोटॉन्स की बहुत सारी क्वांटिटी होती है, तो स्ट्रोमा में बहुत सारे प्रोटॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। प्लास्टोक्यूनॉन इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ साथ प्रोटॉन कैरियर भी होता है। ये पॉइंट मैं फिर से रिपीट करूंगा, प्लास्टोक्यूनॉन नॉट ओनली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन बट प्लास्टोक्यूनॉन इज आल्सो प्रोटॉन रिसीवर। ओके, प्लास्टोक्यूनॉन को इलेक्ट्रॉन किससे मिल गए? PS2 से। फॉर एग्जांपल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बैलेंस करने के लिए प्लास्टोक्यूनॉन स्ट्रोमा रीजन से पेयर ऑफ प्रोटॉन भी रिसीव करेगा, तो इट विल बिकम न्यूट्रलाइज। अभी प्लास्टोक्यूनॉन के पास पेयर ऑफ प्रोटॉन स्ट्रोमा से आ गए हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन PS2 से आ गए हैं। प्लास्टोक्यूनॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले जाकर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को देता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं। तो अभी प्लास्टोक्यूनॉन साइटोक्रोम B6F के पास इलेक्ट्रॉन लेकर गया और इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर दिया, तो प्लास्टोक्यूनॉन के पास बचा क्या? पेयर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन को वो डोनेट नहीं कर सकता है, और डोनेट करने की कोशिश भी करेगा तो साइटोक्रोम B6F प्रोटॉन रिसीवर नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिसीवर है। इसीलिए मैं पहले आपको बताया कि साइटोक्रोम B6F आर द core component of electron transport chain, not the proton transport। तो खैर, अभी प्लास्टोक्यूनॉन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को डोनेट कर दिया, पेयर ऑफ प्रोटॉन प्लास्टोक्यूनॉन के पास प्रेजेंट है, तो प्लास्टोक्यूनॉन क्या करेगा कि ये पेयर ऑफ प्रोटॉन लूमेन के अंदर डोनेट कर देगा। सो बाय दिस वे
पेयर ऑफ प्रोटॉन्स आर मूविंग फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू द लूमेन। तो इस तरह लूमेन में पेयर ऑफ प्रोटॉन आ गए हैं। सो यू मस्ट हैव टू नो दैट पेयर ऑफ प्रोटॉन्स आर अक्यूमुलेटिंग इनसाइड द लूमेन बाय टू वेज। फर्स्ट वे इज splitting of water and second way is electron transport chain. Okay, so protons are accumulating from stroma into the lumen. This will generate the proton gradient inside the lumen. lumen के अंदर प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ रही है, यानी lumen में प्रोटॉन ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहे हैं। और lumen में प्रोटॉन ग्रेडियंट इंक्रीज करने के लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। एक है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिससे पेयर ऑफ प्रोटॉन लूमेन में इंक्रीज हो गए, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके थ्रू पेयर ऑफ प्रोटॉन स्ट्रोमा टू लूमेन माइग्रेट कर गए। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन आगे क्या करते हैं, साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लास्टोसाइनिन को। यू नो दैट प्लास्टोसाइनिन इज कॉपर कंटेनिंग ब्लू प्रोटीन। दो कंपोनेंट याद रखना आपको, फेरेडॉक्सिन आयरन कंटेनिंग रेड प्रोटीन, प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग ब्लू प्रोटीन। प्लास्टोक्यूनॉन की तरह प्लास्टोसाइनिन भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोम B6F से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है और खुद ले जाकर PS1 को डोनेट करता है। नाउ PS1 accept the electron from plastocyanin and get excited. PS1 को एक्साइट होने का दूसरा एक और मौका मिलता है जब 700 नैनोमीटर का लाइट इंसिडेंट होगा। यू नो दैट PS1 is also called as P700 because it accept the light energy of 700 nanometer wavelength and get excited. PS2 का एक्साइटेशन 680 नैनोमीटर लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से पॉसिबल होता है। PS1 का एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 जो प्लास्टोसाइनिन ने ला करके दिया है, एंड लाइट एनर्जी ऑफ 700 नैनोमीटर, ये दो फैक्टर्स की वजह से PS1 एक्साइट होगा। नाउ व्हेन PS1 गेट एक्साइटेड, it will lose the energy rich electron and electron are first accepted by ferredoxin. Finally, ferredoxin donate its electron to the NADP molecule. This NADP complex is located outside the thylakoid membrane, and this NADP complex is also called as NADP reductase. अब क्योंकि NADP रिडक्टेज से बहुत करीब है फेरेडॉक्सिन, इसीलिए आप इसको फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज फेरेडॉक्सिन NADP reductase complex located outside the thylakoid membrane. So this ferredoxin donate pair of electron to the NADP. NADP become डाइनेगेटिव। नाउ व्हाट विल हैपन, अब यहां पे ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, थाइलैकोइड मेम्ब्रेन जैसी कि डायग्राम आपको एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, थाइलैकोइड मेम्ब्रेन के एक साइड में प्रेजेंट है इस तरीके से ऑक्सीजोम, या फिर आप इसको F0 F1 कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। F0 is also called as base piece which is embedded in the thylakoid membrane, and F1 is also called as head piece which is located or connected to the thylakoid membrane but outside. Okay, ये F0 F1 माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में इनको अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए नाम दिया गया CF0 एंड CF1 कॉम्प्लेक्स, जैसा कि आप बुक के अंदर देखे हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, ओके, when many protons are accumulated inside the lumen, lumen में बहुत सारे प्रोटॉन्स कंटिन्यूअसली accumulate होते जाएंगे,
क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू PQ इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, प्रोटॉन रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन आगे दे देगा, प्रोटॉन को लुमेन में सेंड कर देगा। इसी तरह कंटिन्यूअसली फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता जाएगा, पेयर ऑफ प्रोटॉन अकुमुलेट होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन PS1 के पास जाएंगे, ऑक्सीजन इवॉल्व होता जाएगा। तो हमको बच्चों फोकस करना है पेयर ऑफ प्रोटॉन्स पर विच आर कंटिन्यूअसली अकुमुलेटिंग इनसाइड द लुमेन। अब होता क्या है कि लुमेन में प्रोटॉन ग्रेडियंट इंक्रीज हो गया, प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और स्ट्रोमा में प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करने के लिए अब यहां पर होगा डिफ्यूजन, एंड यू नो दैट डिफ्यूजन इज ऑलवेज टेकिंग प्लेस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। अभी प्रोटॉन का हाई कंसेंट्रेशन किधर है? इनसाइड द लुमेन, और प्रोटॉन का लो कंसेंट्रेशन किधर हो गया? स्ट्रोमा में, क्योंकि स्ट्रोमा के प्रोटॉन धीरे धीरे करके लुमेन में आ गए, स्ट्रोमा के प्रोटॉन कम हो गए। इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करने के लिए लुमेन अपने प्रोटॉन्स को CF0 CF1 के थ्रू वापस स्ट्रोमा में सेंड करेगा, एंड इट इज एक्टिव प्रोसेस। व्हाई इट इज एक्टिव प्रोसेस? बिकॉज मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन need the energy and energy is obtained from the energy rich electrons. इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे यहां पर। ओके, तो CF1 से जब पेयर ऑफ प्रोटॉन पास आउट होगा तो दिस पेयर ऑफ प्रोटॉन विच इज एनर्जेटिक, पेयर ऑफ प्रोटॉन एनर्जेटिक आया, पेयर ऑफ प्रोटॉन में एनर्जी है। किसका एनर्जी है भाई? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है और लाइट एनर्जी है। लेकिन CF1 कॉम्प्लेक्स एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है जो आते समय पेयर ऑफ प्रोटॉन के अंदर का एनर्जी छीन लेगा और उस एनर्जी की हेल्प से ADP में ऐड कर देगा IP, दैट इज इनऑर्गेनिक फास्फोरस। सो ADP is adenosine diphosphate, IP inorganic phosphate, both are combined to form the ATP molecule. So here ATP is formed in the stroma part of the chloroplast. Got it? Now what would about the pair of proton which are pumped in the lumen, in the stroma? लूमेन से जो पेयर ऑफ प्रोटॉन स्ट्रोमा में आ गए हैं, अब इन पेयर ऑफ प्रोटॉन के पास एनर्जी नहीं है। जब लूमेन से CF तक आया, CF1 तक, तब प्रोटॉन्स के पास एनर्जी था, लेकिन CF1 कॉम्प्लेक्स ने पेयर ऑफ प्रोटॉन की एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया, ATP तैयार कर लिया। अब पेयर ऑफ प्रोटॉन के पास एनर्जी नहीं है। आर एनर्जी लूज पेयर ऑफ प्रोटॉन, this pair of proton are now moving towards the NADP. Okay, you have two protons, एक प्रोटॉन के पास एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज। ओके, दोनों पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्जेस को क्या कर देंगे? बैलेंस, और यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा एंड इट विल बिकम NADP, H2 चार्जेस भी खत्म हो जाएंगे। So this NADPH2 is also formed in the stroma part of the chloroplast. Okay, so this explain how NADPH2 form and how ATP is formed in the stroma of the chloroplast, because they are assimilatory power. ATP and NADPH2 both are called as assimilatory powers, and these assimilatory powers are needed in the dark reaction. अब यहां पर देखिए आपके प्रोटॉन का ऑस्मोसिस हुआ। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय क्रॉसिंग द selectively permeable membrane और सेमी permeable membrane। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। वाटर अगर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं, लेकिन यहां पर वाटर की जगह प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन सिलेक्टिवली परमिएबल थाइलेकोइड मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, इसीलिए पीटर मिटकेल को यह प्रोसेस ऑस्मोसिस की तरह दिखा।
और प्रोटॉन्स आखिरकार केमिकल्स हैं, इसीलिए